morning, everyone. So today we discuss about the Vesper theory, and Vesper theory is the valence shell electron pair repulsion theory. This one is the valence shell electron pair repulsion theory. जो ये जब with the help of the Vesper theory, we can easily predict the geometry of the molecule. That means Vesper theory is used to predict the geometry of the molecules. And this theory is given by firstly proposed by Sidgwick and Powell in 1940, and after that finally developed by Gillespie and Nylund in 1957. In 1957, in the Vesper theory, valence shell electron pair theory, as the valence shell electron pair theory means in this theory the electron present in the valence shell of an atom or molecule, the electron present in the valence shell of an atom feels electrostatic force of repulsion between the bonded pair of electron and the lone pair of electron. So the due to the electrostatic force of repulsion, the like this one is the atom A, and this one is atom B, and this one is atom B, and this one is atom B. The force of electrostatic pair of repulsion present in between the bonded pair of electron, the bonded atom arrange in a particular fashion or adopt a perfect geometry in which the repulsion between these bond pair of electron is minimum and maximum stability. So that may be like this, because in that case the repulsion is minimum in between the bonded pair and lone pair. So this is the valence and electron pair repulsion theory. So according to this theory, the shapes of molecule can be determined by the number of electron pair in the valence shell of the central atom. जो ये सेंट्रल एटम है इसके वैलेंस शेल में कितने इलेक्ट्रॉन पेयर प्रेजेंट है, उसके बेसिस पे हम क्या करते हैं, उसकी ज्योमेट्री डिटरमाइन करते हैं, कि उसकी जो शेप्स है मॉलिक्यूल की हम वो डिटरमाइन करते हैं. Geometry and shapes of the molecule can be determined by the number of electron pair present in the valence shell of the central atom. So इसके लिए हम एक एग्जांपल ले सकते हैं. So sorry, this slide is already written in previous lecture. I have recorded this lecture, but due to some technical issue, the volume is not recorded. So I am again recording this video lecture. Suppose this is the desk 1 and it have 6 students. Similarly, suppose करो एक molecule है A, उसके पास 6 अदर एटम्स हैं. अब ये 6 जो अदर एटम्स है वो A के अराउंड इस तरह से अरेंज होंगे कि उनके बीच में जो फोर्स ऑफ इलेक्ट्रोस्टैटिक रिपल्सन वो मिनिमम हो एंड स्टेबिलिटी मैक्सिमम हो. जैसे एक बेंच पे 6 बच्चे बैठे हैं, तो इनके बीच में क्या होगा, इनको थोड़े टाइम बाद गर्मी लगनी स्टार्ट हो जाएगी, क्योंकि वो बिल्कुल कंजस्टेड एनवायरनमेंट में एक दूसरे के साथ बैठे. तो मे बी ए जो यहाँ पे फर्स्ट स्टूडेंट है वो सेकंड वाले को कहेगी थोड़ा इधर हो ले, मुझे गर्मी लग रही है या मैं यहाँ पे अनकंफर्टेबल फील कर रहा हूँ. सिमिलरली मॉलिक्यूल्स भी क्या करते हैं, जब एक दूसरे के बिल्कुल पास-पास होते हैं तो उसमें रिपल्सन होना स्टार्ट हो जाता है. सेम यहाँ पे जैसे मैं कह रहा हूँ हीट प्रोड्यूस होएगी, दैट मीन्स मॉलिक्यूल की एनर्जी बढ़ेगी. दैट मीन्स जो है 6 मॉलिक्यूल्स एक बेंच पे बैठे हैं, इनकी एनर्जी इंक्रीज़ हो जाएगी. इनकी एनर्जी क्या होगी? इंक्रीज़ होगी. एनर्जी इंक्रीज़ होगी तो अनस्टेबल होंगे. अनस्टेबल होंगे तो दैट मीन्स मॉलिक्यूल की स्टेबिलिटी डिक्रीज़ होगी. सेम यहाँ पे पैटर्न होता है. अब स्टेबिलिटी को गेन करने के लिए या तो ये है कि जो ये डेस्क है ये थोड़ा-सा इसको हम इसकी लेंथ को बढ़ा दें, या 2 मॉलिक्यूल्स को किसी दूसरे एटम पे शिफ्ट कर दें. ये जो 2 मॉलिक्यूल्स हैं उनको किसी सेकंड एटम पे हम शिफ्ट कर दें. ओके? मॉलिक्यूल के केस में ऐसा नहीं होगा. जब 6 मॉलिक्यूल्स होंगे तो वो एक ही एटम के अराउंड अरेंज रहेंगे.
ठीक है? अगर आप इसको समझना चाहते हो तो इसको भी आप इस समझ सकते हो कि जो मॉलिक्यूल्स हैं, जो भी स्टूडेंट्स बैठे हैं, वो अपने आप को इस तरह से अरेंज करेंगे, उनके बीच का जो गैप है वो इस तरह से गैप रहेगी, उनके बीच में जो रिपल्सन हो मिनिमम हो और जो उनकी एनर्जी है वो डिक्रीज़ कर जाए, एनर्जी डिक्रीज़ होगी तो उनकी जो स्टेबिलिटी होगी वो इंक्रीज़ हो जाएगी। सो जैसे हम बात कर रहे थे, अगर हम वाटर का एग्ज़ाम्पल लेते हैं, वाटर में sp3 हाइब्रिडाइजेशन है और हाइब्रिडाइजेशन में भी क्या है कि हमने पढ़ा है कि जो शेप्स ऑफ मॉलिक्यूल्स हैं, अगर उनके पास बॉन्ड पेयर और लोन पेयर दोनों प्रेज़ेंट है, तो लोन पेयर के बीच में रिपल्सिव मैक्सिमम होता है और बॉन्ड पेयर के बीच में कम होता है। दूसरा एग्ज़ाम्पल मीथेन की अगर हम बात करें, इसकी भी हाइब्रिडाइजेशन sp3 है और वाटर की भी हाइब्रिडाइजेशन sp3 है। मीथेन के पास 4 बॉन्ड पेयर हैं और वाटर के पास 2 लोन पेयर हैं एंड 2 बॉन्ड पेयर हैं। इसकी ज्योमेट्री टेट्राहेड्रल है बस, बट यहाँ पे जो इसकी जो ज्योमेट्री और जो शेप है CH4 की, वो टेट्राहेड्रल है, बट वाटर के केस में क्या एंगुलर है। बिकॉज़ लोन पेयर रिपल्सन मैक्सिमम होगा कार्बन। हम मैं CH4 की आपको ज्योमेट्री बना के दिखा रहा हूँ। दिस वन इज़ द CH4। ओके। सो sp3 हाइब्रिडाइजेशन है। सो सिमिलर CH4 वाटर की भी जो ज्योमेट्री होनी चाहिए वो इस तरह से होनी चाहिए थी। बट जो एक्चुअल में जो ज्योमेट्री रहती है, इसकी तो CH4 ज्योमेट्री होगी, इसकी CH4, बट यहाँ पे इसकी अगर हम शेप की बात करें वो क्या होगी? एंगुलर या एंगुलर शेप होगी। क्योंकि लोन पेयर का जो कंसीडरेशन है वो जब हम उसकी शेप को डिटरमाइन कर रहे हैं उसमें कंसीडर नहीं करते। सो नेक्स्ट दिस इज़ द पोस्टुलेट्स ऑफ वेस्पर थ्योरी। तो पहला पोस्टुलेट क्या है? द ज्योमेट्री ऑफ ए मॉलिक्यूल डिपेंड्स ऑन द नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन the number of valence shell electron pair, whether bonded or not bonded. That means lone pair and bond pair. Bonded or not means bond pair as in lone pair around the central atom. जैसे कार्बन एटॉमिक नंबर 6 1s2 2s2 2p4 सभी बॉन्ड पेयर रहते हैं। नाइट्रोजन एटॉमिक नंबर 7 1s2 2s2 2p3 3 बॉन्ड पेयर और 1 लोन पेयर होता है। तो दोनों के केस में जो हाइब्रिडाइजेशन रहेगी वो सेम रहेगी। There is also sp3 hybridization and in that case is also sp3 hybridization. बट अगर हम ज्योमेट्री या शेप की बात करें दोनों केस में डिफरेंट रहेगी। यहाँ पे पिरामिडल रहती है, यहाँ पे टेट्राहेड्रल। इन द केस ऑफ कार्बन टेट्राहेड्रल एंड इन द केस ऑफ पिरामिड। तो दैट मीन्स फर्स्ट पोस्टुलेट क्या कहता है कि किसी भी मॉलिक्यूल की जो ज्योमेट्री है वो डिपेंड करेगा कि उसके वैलेंस सेल में कितने इलेक्ट्रॉन पेयर है। वो बॉन्डेड है, ओके, नॉट बॉन्डेड है तब भी। दैट मीन्स बॉन्ड पेयर एंड लोन पेयर उसमें कंसीडर बॉन्ड पेयर लोन पेयर आल्सो हेल्पिंग इन डिटरमाइनिंग द ज्योमेट्री ऑफ द मॉलिक्यूल्स central atom. So this one is the first postulate. Okay. Second postulate क्या कहता है? इलेक्ट्रॉन पेयर वो क्या करते हैं, एक दूसरे से रिपेल करने की कोशिश करते हैं, क्योंकि जो इलेक्ट्रॉन चार्ज क्लाउड है वो नेगेटिवली चार्ज है। तो एज ए रिजल्ट क्या होता है कि जो इलेक्ट्रॉन पेयर होते हैं वो एक दूसरे से फार अवे या फार अपार्ट स्टे करना स्टार्ट कर देते हैं और वो एक दूसरे से इतना फार अवे रहते हैं, इतना दूर रहते हैं कि उनके बीच में जो जो उसकी अगर हम जो उसकी स्टेबल स्टेट रहे वो एक इस तरह की पर्टिकुलर स्टेट में स्टेबल हो जाए कि वहाँ पे जो स्टेबिलिटी है तो वो मैक्सिमम रहे और जो एनर्जी है वो मिनिमम रहे। दैट मीन्स इलेक्ट्रॉन पेयर टेंड्स टू रिपेल वन अनदर। Electron pair tends to repel one another because their electron cloud is negatively charged. As already we know that electron have negative charge. So as a result, the electron pair tries to stay away as far apart as possible to achieve a stable configuration or state of minimum energy and maximum stability. Okay. थर्ड पॉइंट क्या कहता है कि जो रिपल्सन है बिटवीन द लोन पेयर एंड लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन इज डिफरेंट देन द रिपल्सन बिटवीन बॉन्ड पेयर एंड बॉन्ड पेयर. So, from the different concept, it is clear that lone pair repulsion is maximum, or lone pair repulsion is greater than lone pair bond pair, and lone pair bond pair repulsion is greater than bond pair bond pair. This is the third postulate. Fourth postulate क्या कहता है? जो repulsive forces है वो sharply decrease करती है as the bond angle increases between the इलेक्ट्रॉन पेयर की जो बॉन्ड एंगल है
शार्पली डिक्रीज करेगा, रिपल्सिव फोर्सेस डिक्रीज शार्पली with increasing between the electron pair. There will be increasing bond angle between the electron pairs. Okay, electron pair that means bond pair यहाँ पे है, bond pair, bond pair, bond pair, bond pair. So 90 डिग्री एंगल में मे बी इनके बीच में समवट कुछ रिपल्सन हो, बट 120 डिग्री एंगल में इनके बीच का डिस्टेंस क्या बहुत ज्यादा है, और 180 में तो अगर आप ध्यान से दोगे, ध्यान से देखते हैं तो जो रिपल्सन है वो बहुत ज्यादा है. ओके, सो जैसे जैसे एंगल बढ़ेगा तो जो रिपल्सन है इलेक्ट्रॉन पेयर्स के बीच में, आइदर दैट इज बॉन्ड पेयर, आइदर दैट इज लोन पेयर. बॉन्ड पेयर या लोन पेयर, किसी भी तरह का जो इलेक्ट्रॉन पेयर है उसके बीच में जो रिपल्सन है वो डिक्रीज करना स्टार्ट करेगा जैसे जैसे बॉन्ड एंगल इंक्रीज होगा. सपोज करो, लेट्स सपोज कि बॉन्ड एंगल यहाँ पे 45 डिग्री है, तो यहाँ पे तो बॉन्ड एंगल 90 डिग्री है. 45 के लिए मैं यहाँ पे ड्रा कर लेता हूँ. कार्बन, हाइड्रोजन, हाइड्रोजन, एक बॉन्ड पेयर ये, एक बॉन्ड पेयर ये, तो इनके बीच में डिस्टेंस कम है, तो रिपल्सन मैक्सिमम क्या होगा, शॉर्टर डिस्टेंस, शॉर्टर डिस्टेंस ग्रेटर रिपल्सन. और आप ये भी लिख सकते हैं यहाँ पे स्मॉल बॉन्ड एंगल. ओके, सो जब किसी भी जो मॉलिक्यूल्स है उसके पास बॉन्ड पेयर रहते हैं, कोई लोन पेयर नहीं होता, तो ज्योमेट्री रेगुलर रहती है परफेक्टली, जो उसकी ज्योमेट्री रहेगी वो परफेक्टली रहेगी, रेगुलर ज्योमेट्री होगी. बट जब बॉन्ड पेयर लोन पेयर होगा तो वहां पे इरेगुलर ज्योमेट्री होगी. ओके, जब वहां पे लोन पेयर भी आ जाएंगे, दिस लोन पेयर. जैसे मैंने CH4 sp3 हाइब्रिडाइजेशन है, वाटर इज आल्सो sp3 हाइब्रिडाइजेशन. इसकी ज्योमेट्री परफेक्टली टेट्राहेड्रल है, और यहाँ पे जो एंगुलर ज्योमेट्री है वो एंगुलर है, जो उसकी शेप है वो एंगुलर है. ये इरेगुलर है, ये रेगुलर है, रेगुलर ज्योमेट्री और इरेगुलर. नेक्स्ट हम देखते हैं एप्लीकेशन ऑफ वेस्पर थ्योरी. सो फर्स्ट जो हमने यहाँ पे एग्जांपल लिया है NH3 अमोनिया. अमोनिया एटॉमिक नंबर 7, वैलेंस सेल इलेक्ट्रॉन कॉन्फ़िगरेशन 1s2 2s2 2p3. वैलेंस सेल में इलेक्ट्रॉन कितने हैं, 5. वैलेंस सेल इलेक्ट्रॉन, ग्राउंड स्टेट इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन क्या होगी, 2s2 2p3. 3 जो अनहाइब्रिडाइज्ड p orbital involved in the bond formation with 1s orbital of the hydrogen atom. सिग्मा बॉन्ड बनेगा. And the electron, the paired electron present in the 2s orbital act as a lone pair. So completely क्या हो गया, 1s और 3p orbital combine हो गया, आपस में बनाएंगे 4sp3 hybrid orbitals. And 4sp3 hybrid orbitals further को हम बोलते हैं sp3 hybridization. That means ammonia molecules have sp3 hybridization. Nitrogen bond pair, sigma bond, and this one is the lone pair. तो यहाँ पे bond pair है और this one is the lone pair. ओके, sp3 हाइब्रिडाइजेशन है, पिरामिडल ज्योमेट्री है, टेट्राहेड्रल का बॉन्ड एंगल 109.5 डिग्री होता है, बट इन द केस ऑफ अमोनिया मॉलिक्यूल हियर बॉन्ड एंगल इज 107 डिग्री. नेक्स्ट मॉलिक्यूल इज वाटर. वाटर एटॉमिक नंबर 8, इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन 1s2 2s2 2p4. दैट मीन्स टोटल वैलेंस सेल में 6 इलेक्ट्रॉन है. हाइड्रोजन सेंट्रल एटम के पास 2 ही बॉन्डेड एटम है, 2 हाइड्रोजन है, दैट मीन्स 2 बॉन्ड पेयर रहेंगे, 2 इलेक्ट्रॉन बॉन्ड पेयर में इन्वॉल्व हो गए, तो बचे कितने, 4. 4 बॉन्ड पेयर, 4 जो इलेक्ट्रॉन है वो क्या बनाएंगे, 2 लोन पेयर बनाएंगे. दैट मीन्स 1 2 3 4 1 2 3 4 5 6. तो ये ऑक्सीजन के 6, और एक इलेक्ट्रॉन यहाँ से आएगा, एक इलेक्ट्रॉन यहाँ से, एक इलेक्ट्रॉन यहाँ से, एक इलेक्ट्रॉन, क्योंकि इलेक्ट्रॉन हाइड्रोजन की इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन भी क्या है, 1s1.
इसका एक इलेक्ट्रॉन ऑक्सीजन के एक इलेक्ट्रॉन के साथ शेयरिंग करेगा, म्यूचुअल शेयरिंग करेगा, उनके बीच में कोवेलेंट बॉन्ड फॉर्मेशन होगा, सिग्मा बॉन्ड होगा। दिस वन इज द लोन पेयर। तो यहाँ के बीच में इनके बीच में क्या डिस्टेंस कम है, तो रिपल्सन क्या होगा, ज़्यादा होगा। जो ज्योमेट्री होनी चाहिए अकॉर्डिंग टू हाइब्रिडाइजेशन दैट इज sp3 टेट्राहेड्रल, परफेक्टली टेट्राहेड्रल होनी चाहिए। शेप उसकी ज्योमेट्री जो शेप है, जो ज्योमेट्री टेट्राहेड्रल होनी चाहिए, बट ड्यू टू द ग्रेटर रिपल्सन बिटवीन लोन पेयर, the geometry is bent or angular. Bond angle 10.55 degree. So after that, next example is hydronium ion. The geometry and shapes of the hydronium ion is similar to that of the ammonia molecule, as we have discussed in our previous slide. Hydronium ion, ammonia, H3O positive, oxygen atomic number 8, 1s2, 2s2, 2p4, in the valence shell 6 electron. ओके, बट ओ पॉजिटिव एक इलेक्ट्रॉन वहां से रिमूव करेंगे तो 1s2, 2s2, 2p3, 3 इलेक्ट्रॉन बॉन्ड पेयर में इन्वॉल्व होंगे, एक एज ए लोन पेयर रहेगा लाइक अमोनिया। सो जो H3O पॉजिटिव की जो ज्योमेट्री रहेगी वो सिमिलर टू अमोनिया रहेगी, पिरामिडल लाइक अमोनिया मॉलिक्यूल। नेक्स्ट इज SF4, सल्फर टेट्राफ्लोराइड। नेक्स्ट जो हमारे पास जो मॉलिक्यूल है दैट इज सल्फर टेट्राफ्लोराइड मॉलिक्यूल। सल्फर एटॉमिक नंबर 16, आउटर वैलेंस शेल इलेक्ट्रॉनिक कन्फिगरेशन इज 3s2 3p4। अगर हम कंप्लीट इलेक्ट्रॉनिक कन्फिगर लिखते हैं 1s2 2s2 2p6 3s2 3p4, दिस इज द आउटर वैलेंस शेल इलेक्ट्रॉनिक कन्फिगरेशन। टोटल 6 इलेक्ट्रॉन है, बट सल्फर 4 कोवलेंट बॉन्ड बना रहा है फ्लोरीन एटम के साथ। सो दीज 4 इलेक्ट्रॉन इन्वॉल्व इन बॉन्ड फॉर्मेशन एंड दीज 2 इलेक्ट्रॉन इन्वॉल्व इन लोन पेयर 1 + 4 5 5 sp3d। इन दैट केस थोड़ा सा अगर हम इसको देखते हैं, ग्राउंड स्टेट इलेक्ट्रॉनिक कन्फिगरेशन क्या होगी, 2s and 3s, 1 2 3 4 in the ground state, sorry 3s, this one is the 3p in the ground state, this one is 3 and this one is also 3. In the ground state there is only 2 unpaired electron, but sulfur central atom is bonded to 4 fluorine atoms, so there is need of 2 additional unpaired electron, and that is only possible when the electron from the ground state 3p orbital is excited to the 3d orbital. So the excited state electronic configuration क्या होगी, 3s 3p 3d 1 2 3 4 1 2 3 4। यहाँ पे 4 फ्लोरीन एटम बॉन्ड फॉर्मेशन करेंगे। ये एज ए लोन पेयर रहेगा। दिस वन इज एज ए lone pair that is represented here, and these are for bond pair. This is axial bond and this one is the equatorial bond hybridization, and this is the trigonal bipyramidal geometry, and sp3 is the hybridization. So now there is two question arises, whether this lone pair present on the equatorial position or whether this lone pair is present on the equatorial position. As we have studied in the Vesper theory postulate that the bond pair and lone pair molecules uh, are present uh, at the position where the energy is minimum and the stability is maximum. So lone pair in both of the cases, that can be possible. The lone pair जो होंगे वो ऐसी पोजीशन पे होंगे जहाँ पे वो मिनिमम रिपल्सन के साथ हो और मैक्सिमम स्टेबिलिटी के साथ हो। सो अगर हम इस स्ट्रक्चर की बात कर रहे हैं, स्ट्रक्चर 1 एंड दिस वन इज द स्ट्रक्चर 2। स्ट्रक्चर 1 में क्या है कि ये लोन पेयर इसको रिपेल करेगा, इसको रिपेल करेगा, दैट मीन्स 2 लोन पेयर बॉन्ड पेयर एट एन एंगल ऑफ 90 डिग्री। सिमिलरली ये लोन पेयर इस बॉन्ड पेयर को रिपेल कर सकता है, इस बॉन्ड पेयर को रिपेल कर सकता है, टू लोन पेयर बॉन्ड रिपल्सन एट एन एंगल ऑफ 120 डिग्री। ओके, इन दैट केस दिस एक्सियल लोन पेयर can repel the 3 fluorine atom that are present at the equatorial position at an angle of 90 degree. That means this one this one Fa, Fb and Fc. So 3 lone pair bond pair repulsion at an angle of 90 degree and 1
lone pair bond pair at an angle of 120 degree. Okay. In that case, there is two lone pair bond pair repulsion. In that case, there is two lone pair bond pair repulsion, and in that case, there is three lone pair bond pair repulsion. So in that case, the molecule have higher energy and minimum stability, but in that case of the molecule have minimum energy and maximum stability. So this is the final geometry of the SF4 molecule, that is the seesaw geometry. Next molecule is ClF3. Next molecule is ClF3. In the case of ClF3 की अगर हम बात करते हैं, chlorine is bonded to three fluorine atoms. Chlorine is covalently bonded to three fluorine atoms, and chlorine has same unpaired electron in the valence shell as fluorine atom. Fluorine 2s, chlorine 3s. So the electron is 3s2, 1s2, 2s2, 2p6, 3s2, 3p, 5. 5 electron at total. Total unpaired electron is 7. But chlorine is bonded with 3 fluorine atom. That means out of 7 electrons, 3 electrons are involved in the bond formation, and remaining 4 electron act as a lone pair. So ClF3 have total 7 electron, 3 bond pair में इन्वॉल्व हो जाएंगे, तो बचे कितने? 4. 4 क्या बनाएंगे? 4 electron combines to give 2 lone pair, because one lone pair have 2 electron. तो टोटल हो गए 4 + 3, 7 इलेक्ट्रॉन हो गया. 2 लोन पेयर रहे इक्वेटोरियल पोजीशन पे और 3 बॉन्ड पेयर 1 2 3, 3 और 4 7, टोटल हो गए 7 इलेक्ट्रॉन. सो नेक्स्ट एग्जांपल इज ICl2 नेगेटिव. and this one ICl2 negative. Iodine electronic configuration, valence shell electron configuration 5s2 5p5, total 7 electron. But in the case of the ICl2 negative, the one of the chlorine atom, Cl negative atom, one of the Cl negative atom forms coordinate and dative bond with iodine central atom. That is, there is one vacant atomic orbital, one vacant डी एटॉमिक ऑर्बिटल. इस केस में एक डी एटॉमिक ऑर्बिटल वैकेंट रहेगी. वह ग्राउंड स्टेट इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन क्या रहेगी? 5s2 5p5, 1 2 3 4 5 6 7, टोटल इलेक्ट्रॉन 7 है वैलेंस सेल में, और 5p में 5 इलेक्ट्रॉन है. 1 2 3 4 5. एक क्लोरीन यहाँ पे बॉन्ड फॉर्मेशन बनाएगा. Cl नेगेटिव क्या करेगा? 5d ऑर्बिटल में दोनों लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन, जो लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन हो वहां पे डोनेट करेगा और कोऑर्डिनेट बॉन्ड की फॉर्मेशन होगी. ओके. सो टोटल क्या हुआ? 1 s ऑर्बिटल कंबाइन है, 3 p ऑर्बिटल कंबाइन है, एंड 1 d ऑर्बिटल आपस में कंबाइन बनेगी, वैकेंट ऑर्बिटल आपस में कंबाइनेगी, sp3d ऑर्बिटल. दैट इज ट्राइगोनल बाइपिरामिडल ज्योमेट्री. And the 3 lone pair is present at the equatorial position, and 2 chlorine atom at the axial position at an angle of 180 degree, and there is minimum repulsion between bond pair repulsion, because the 2 chlorine atom at an angle of 180 degree, and the molecule have ICl2 negative have linear geometry, linear shape, and the hybridization is sp3d. And in the case of the in the case in determining the geometry shape of the molecule, the lone pair of electron is not considered. So if we neglect the three lone pair present in the trigonal bipyramidal geometry, then the ICl2 negative have linear shape. So जो shape कैसी होगी molecule की, वो linear होगी यहाँ पे. In that case ये जो उसकी shape रहेगी वो linear shape रहेगी. Okay. So in that case, we have discussed in that video lecture we have discussed VSEPR theory, the 4 postulates of VSEPR theory, and also the 5 to 6 example of different type of molecules
that is explained on the basis of the Vesper theory, or we simply can say that the application of the Vesper theory in determining the structure of ammonia, in determining the structure of water molecule, in determining the structure of ammonia, water, H3O positive, SF4, chlorine trifluoride, and ICl2 negative. Ammonia, sp3 hybridization, sp3 hybridization, sp3 hybridization, sp3d hybridization, sp3d hybridization, and sp3d hybridization. शेप कैसी रहेगी? पिरामिडल, angular. In the case is also pyramidal. In the case of the sisa, and in the case of the ClF3, the ClF3 have not any perfect any type of geometry. There is no particular name given to the ClF3 molecule. As we the propulsion 90 degree. This is the T shape. And in the case of the ICl2 negative, linear. Okay, so let's also see the bond pair and lone pair. अमोनिया में वन लोन पेयर प्लस 3 बॉन्ड पेयर. वाटर के केस में क्या होगा? 2 लोन पेयर, 2 बॉन्ड पेयर, and hydronium ion is also have 1 lone pair, 3 bond pair. SF4 have 1 lone pair plus 4 bond pair, and ClF3 have 2 lone pair plus 3 bond pair, and ICl2 negative have 3 lone pair plus 2 bond pair. Sorry, we can say that 1 bond pair and 1 coordinate bond. Okay, these are different type of molecules: ammonia, water, hydronium ion, SF4, ClF3, ICl2 negative, that is discussed in the Vesper theory. So I hope you have completely understood the Vesper theory. What is Vesper theory? So thank you so much for watching the video lecture.